Heading number 18, Preservation of Minutes and Other Records. Preservation means आपने कितने समय तक उन रिकॉर्ड्स को मेंटेन रखना है, प्रिजर्व करके रखना है. Alright? Minutes of all meetings shall be preserved permanently in physical or in electronic form with time stamp. ये सब बच्चों को बोल रहा हूं बेटा, टाइम स्टाम्प जहां जहां आ रहा है वहां आप अच्छे से नोट कर लीजिए. टाइम स्टाम्प एक नया कंसेप्ट है जनरल मीटिंग के अंदर, और इस चीज को आप अच्छे से नोट कर लीजिए. जहां जहां टाइम स्टाम्प वर्ड यूज हुआ है वहां वहां वो चीज इंपॉर्टेंट है. Where under a scheme of arrangement a company has been merged or amalgamated with another company, minutes of all meetings of the transfer company 18.1 हेडिंग के नीचे जो ये पैराग्राफ है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसे आप एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मार्क कर लीजिए. बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये बहुत अच्छा पॉइंट है. Where under a scheme of arrangement a company has been merged or amalgamated with another company, minutes of all meetings of the transferor company as handed over to the transferee company shall be preserved permanently by the transferee company. मान लीजिए कंपनी बी का मर्जर कंपनी ए के साथ हो गया है, तो कंपनी बी ट्रांसफरर कंपनी है, कंपनी ए ट्रांसफरी कंपनी है. मैं दोबारा से बोल रहा हूं, कंपनी बी का कंपनी ए के साथ मर्जर हो गया है, तो कंपनी बी एक ट्रांसफरर कंपनी है, कंपनी ए एक ट्रांसफरी कंपनी है. तो ट्रांसफरी कंपनी ट्रांसफरर कंपनी के मिनट्स को मेंटेन रखेगी, बरकरार रखेगी. अगर 18.1 पॉइंट समझ में नहीं आया है तो आप मुझे जरूर कॉल करके अपना कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे बेटा. 18.1 अगर आपके समझ में नहीं आया है तो आप कॉल करके मुझे जरूर ये अपना कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए. मेरा फ़ोन नंबर है 9818050252. आप जरूर अपना ये पॉइंट क्लियर कीजिए बेटा, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है. 18.1 18.1 हुआ. 18.2 पढ़ेंगे. ऑफिस कॉपीज office copies of notices, scrutinizer's report, and related papers shall be preserved in good order in physical or in electronic form for as long as they remain current, or for 8 financial years, whichever is later, and may be destroyed thereafter with the approval of the board. Office copies of notices, scrutinizer's report, and related papers of the transferor company as handed over to the transferee company shall be preserved in a good order in physical or electronic form as far as long as they remain in current, or for 8 financial years, whichever is later, and may be destroyed thereafter with the approval of the board and permission of the central government where applicable. तो बाकी जो पेपर्स हैं मिनट्स के अलावा जो दूसरे पेपर्स हैं वो 8 साल तक मेंटेन रखने हैं, या जब तक वो रिलेवेंट उनकी कुछ रिलेवेंस पेंडिंग है तो तब तक उसे आपने मेंटेन करने हैं. 8 साल तक या रिलेवेंस, जब तक वो रिलेवेंस पेंडिंग है बेटा, विच एवर इज लेटर. 18.3 minutes book shall be kept in the custody of the company secretary. Where there is no company secretary, minutes shall be kept in the custody of any director duly authorized for the purpose by the board. Report on annual journal meetings, heading number 19. Every listed company shall prepare a report on annual general meeting in the prescribed format, including confirmation that the meeting was convened, held and conducted. Convene, held and conducted as per the provisions of the Act. Such report shall be fair and correct summary of the proceeding of the meeting, shall contain a day, time and venue of annual general meeting, confirmation with respect to appointment of chairman of the meeting, number of members attending the meeting, confirmation of quorum. ठीक है बेटा. A, B, C, D, confirmation of quorum. E, confirmation with respect to compliance of the Act and standard
विद रिस्पेक्ट टू कॉलिंग, कन्वेनिंग एंड कंडक्टिंग द मीटिंग। मीटिंग को कॉल करने में, कन्वेन करने में, कंडक्ट करने में, कॉल, कन्वेन और कंडक्ट करने में आपने कंपनीज एक्ट 2013 और स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया है। EFG, particulars with respect to any adjournment, postpone of meeting, change in venue and any other points relevant for inclusion in the report। तो इन सब पॉइंट्स को आपने अपने उस रिपोर्ट में कंटेन करना है, रिपोर्ट में लिखना है। इट शैल बी साइंड एंड डेटेड बाय द चेयरमैन ऑफ द मीटिंग और इन केस ऑफ हिज इनएबिलिटी टू साइन by any two directors of the company, one of whom shall be the managing director if there is one and company secretary। ध्यान रखिए बेटा, साइनिंग पर क्वेश्चन आ सकता है। इस पैराग्राफ को आप ध्यान से नोट कर लिए बेटा, साइनिंग पे क्वेश्चन आ सकता है। इट शैल बी साइंड एंड डेटेड बाय द चेयरमैन ऑफ द मीटिंग और इन केस ऑफ हिज इनएबिलिटी टू साइन by any two directors of the company, one of whom shall be the managing director if there is one and company secretary must sign the that report। कौन सी रिपोर्ट की बात कर रहे हैं? रिपोर्ट ऑन एनुअल जनरल मीटिंग की बात कर रहे हैं। डिस्क्लोजर, the annual return of the company, the annual return of a company shall disclose the date of annual general meeting held during the financial year। और इफेक्टिव डेट है बेटा, इफेक्टिव डेट जो है 20 का डिस्क्लोजर पॉइंट पढ़ लीजिए बेटा। एनुअल रिटर्न ऑफ अ कंपनी शैल डिस्क्लोज द डेट ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग हेल्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। और इफेक्टिव डेट बेटा, दिस स्टैंडर्ड शैल बिकम इफेक्टिव 1 जुलाई 2015। हुर्रे बेटा, मजा आ गया, हमारा ये स्टैंडर्ड पूरा हुआ। एक लॉन्ग जर्नी हमने अचीव करी है बेटा इन 20 हेडिंग्स के ऊपर और सभी पॉइंट्स मैंने आपको डिटेल में बताए हैं। फिर भी किसी पॉइंट पे डाउट है, कोई पॉइंट दोबारा से आप पूछना चाहते हैं तो आप सभी सेशंस को ध्यान से नोट कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए बेटा। अगर SS1 SS2 अच्छे से करके जाएंगे तो ओवरऑल 30 मार्क्स का आपका ये एग्जाम में आने वाले, ज्यादा भी आ सकते हैं सारे पेपर मिला के। कंपनी लॉ, सेक्रेटरी ऑडिट और ठीक है, कंपनी लॉ में भी रिलेवेंट रहेगा और सेक्रेटरी ऑडिट में भी ये SS2 रिलेवेंट रहेगा। और अब हम शुरू करेंगे SS1। SS1 से बेटा क्लासेस आपकी शुरू हो जाएंगी जल्दी ही। तो कोई भी डाउट है इस पे टेस्ट भी मैं आपके लूंगा, टेस्ट भी आपने कंडक्ट करने हैं बेटा और अपनी प्रॉब्लम्स को मुझसे पूछना है। दैट्स इट फॉर दिस सेशन, थैंक यू वेरी मच।